Hello everyone, I am Vinay Tripathi, and as I have already started a series of videos in which I am teaching you class 10th mathematics. So in this video I am going to discuss with you NCERT class 10th books exercise 9.1 question 7 to question 9. So open your book exercise 9.1 page number 204. So let's begin with the question number 7 as I have already discussed the question 1 to question 6 in my previous two videos. So if you not watched these videos, go back and watch them and come here again. So as before starting this video, first pause the videos and read the question number 7 and try to understand what is the question actually saying and try to solve it. Then resume the video and watch the solution as I am going to discuss the solution here. So what is the question number 7 saying? In this question, given that from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a building 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower. So in this question, given that a building of height 20 meter and a transmission tower is fixed over building, and from a point on the ground the angle of elevation to the bottom of the transmission tower is 45 degree and angle of elevation to the top of the tower is 60 degree. So calculate the height of transmission tower. Since transmission tower is fixed over the building, so first we will make a diagram. Let AB is a building and a transmission tower AC fixed over a building. Since given that height of building is 20 meter, height of building is 20 meter, and from a point on the ground, the angle of elevation to the bottom of the transmission tower is 45 degree. So join it, and again from the same point, angle of elevation to the top of the transmission tower is 60 degree. So I hope you got it how we will make a diagram from this question. So in this question, given that a building whose height is 20 meter and a transmission tower is fixed over the building, and from a point on the ground angle of elevation to the bottom of the transmission tower is 45 degree and to the top of the transmission tower is 60 degree. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है, लगाया गया है. अब ग्राउंड के एक पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के आधार का या बॉटम का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 45 डिग्री है. और अगर हम इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखें तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का. तो ये क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. सो इस क्वेश्चन में हमें इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है. तो हम मान लेते हैं कि ये h है और 1 बाई 1 हम दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड वी विल अप्लाई the trigonometric ratio in both the triangles separately, and we will evaluate the height of transmission of tower. So this is question number 7, and what the question saying, in triangle, suppose this point is D which is on the ground. In triangle ABD we can find out this length because as I have already the height of building, length of, we know that the height of building, so we can find out this length. In this triangle, tan 45 degree will be equals to AB over BD. So tan 45 degree, as I know that is 1, it is 1. So AB upon BD. So AB will be equal to BD when you multiply it 1 with 1. So AB will be equal to BD. तो हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल में tan रेशियो को अप्लाई किया, और tan थीटा क्या होता है, एज आई न्यू इट, tan थीटा इक्वल्स टू AB ओवर, सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर
बेस। तो यहां पे आपको AB इक्वल टू BD मिल गया, यानी कि BD विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बिल्डिंग के आधार से कितने दूर पे है, 20 मीटर डिस्टेंस पे है, यानी कि बिल्डिंग के बॉटम से बेस ऑफ द बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर पे। नाउ इन ट्रायंगल BCD when we apply tan ratio, so tan 60 equals to BC over BD. So as I knew it, tan 60 is equals to root 3 and BC will be equal to 20 plus H over BD, and BD is 20. You can see here BC will be AB plus AC and AB is 20, AC is H, so BC will be 20 plus H. So multiply it, transpose the 20, so it will be 20 root 3 equals to 20 plus H. So H will be equal to 20 root 3 minus 20. So you can take 20 as a common. So 20 root 3 minus 1. So 20 into 1.732 minus 1. So it will be 20 into 0.732. So it will be 14.64 meter. So the height of transmission tower is 14.64 meter. I hope you got it. So move on to the next question. मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं, तो बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टेच्यू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, जो कि एक पेडेस्टल, एक चबूतरे के ऊपर रखा गया है या फिक्स किया गया है, जैसा कि ये पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से सेम। और इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल को देखिए, पेडेस्टल के ऊपर स्टेच्यू फिक्स किया गया है और स्टेच्यू की हाइट गिवन है, मतलब इस बार ये वाले पोर्शन की हाइट गिवन है, ये वाले की बतानी है। तो इसको पहले मैं रफ करता हूं, इसका डायग्राम एक बार बना देता हूं। क्या है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं पता, ये एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का स्टेच्यू फिक्स किया गया है। स्टेच्यू अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप पेडेस्टल के टॉप को देखेंगे तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का टॉप यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर आप पेडेस्टल के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो हमने मान लिया कि ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट h मीटर है, ठीक है, और हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे ये d है और ये AB स्टेच्यू है और BC आपका पेडेस्टल है। सो आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। यहाँ पे कैसे करेंगे आप, इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू BC over CD, as we know that tan theta equals to perpendicular over base, and एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ एक और साइड जो लगी होती है वो बेस होती है अदर देन हाइपोटेन्यूस। तो आपका CD बेस हो जाएगा, BC हाइट हो जाएगी। सो tan 45 1 होता है, BC इक्वल्स टू CD अपॉन CD, सो यहाँ पे भी BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ACD, जब आप ट्रायंगल ACD में अगेन से tan रेशियो लगाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसकी हाइट बतानी है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू AC ओवर CD
tan 60 आपका √3 होता है। AC की अगर बात करें तो AB प्लस BC हो जाएगा, और CD की अगर हम बात करें तो CD इज नथिंग बट BC। CD क्या है? BC के इक्वल है, तो CD की प्लेस पे आप BC रख सकते हैं। सो आप यहाँ पे कहेंगे कि √3 और BC को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC √3 इक्वल्स टू AB प्लस BC। सो AB विल बी इक्वल टू BC √3 माइनस BC। BC को आप कॉमन लेंगे, BC √3 माइनस 1। सो नाउ AB इज 1.6, सो BC इंटू √3 माइनस 1। सो BC को आप जब √3 माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 1.6 ओवर √3 माइनस 1। यू कैन रैशनलाइज इट, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a प्लस बी a माइनस बी जैसा हो जाएगा। और एज आई नो दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1, सो इट विल बी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओवर 2। So 0.8 into √3 plus 1 will be the answer. I hope you get it. So move on to the next question. This was the question number 8. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। So अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जो वर्टिकली खड़े हुए हैं, है ना, एक और दो। इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि अगर आप टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखें तो वो जो लाइन है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मींस 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, सॉरी, इन क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखिए जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज्यादा बन रहा है, जैसे बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि ज्यादा एंगल बन रहा है। इट मींस हमें बिल्डिंग के बॉटम से या बिल्डिंग के बेस से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप को देखने के लिए अपने हेड को ज्यादा राइज करना पड़ रहा है 60 डिग्री। इट मींस कि जो टावर है वो ज्यादा हाई है कंपेयर टू बिल्डिंग, क्योंकि अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखें तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब 30 डिग्री ही एंगल राइज करना पड़ रहा है हमारे हेड को, तो उतने में हमें बिल्डिंग का टॉप दिख जा रहा है। लेकिन टावर के टॉप को देखने के लिए 60 डिग्री का हमें अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ रहा है। इट मीन्स कि जो आपका टावर है वो ज़्यादा हाई है कंपेयर टू बिल्डिंग। तो सपोज मैंने मान लिया कि ये आपकी बिल्डिंग हो गई, है ना, बिल्डिंग हो गई AB, और CD ये टावर है। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप टावर के फुट से बिल्डिंग को देखें, बिल्डिंग के टॉप को, तो सिर्फ 30 डिग्री से ही काम चल जा रहा है। और अगर आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अपना हेड राइज करना पड़ रहा है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और इसमें गिवन है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि अगर आपका टावर 50 मीटर हाई है तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो बिल्डिंग के टॉप से पहले तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो। इट मींस कि ये जो लेंथ होगी, सपोज ये E पे कट कर रहा है CD को, देन क्या होगा, AE विल बी इक्वल्स टू BC। बिकॉज अगर आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, सारे 90 हो जाएंगे। ओके, सो you need to find the height of building.
सो सपोज दिस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h, हमने मान लिया कि h है, तो ये पूरे टावर की हाइट 50 है। इट मींस यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, h, ये h हो गई। सो बची हुई हाइट आपकी 50 माइनस h, बट इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। आपको अब क्या करना है, ये C पॉइंट है, पॉइंट C है और ये D है। सो इन ट्रायंगल ABC tan 60 will be equal to AB over BC, sorry tan 30 will be equal to AB over BC, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर और ये साइड आपकी बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की आपको नहीं मालूम है, AB over BC, so AB will be equal to BC over √3। यानी कि अगर आपको AB की हाइट पता करनी है तो BC की अगर आपको लेंथ पता चल जाए, ये बेस पता चल जाए और उसमें आप √3 का डिवाइड कर दें तो उससे AB निकल जाएगा। और BC कैसे निकलेगा, BC इस ट्रायंगल का पार्ट है BCD, और ये हाइट आपको गिवन ही है, ये 50 डिग्री। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें एक बार इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD आपको क्या लगाना है, tan रेशियो। तो थीटा क्या है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर CD over BC, so tan 60 is √3 and CD is CD over BC, so CD will be BC √3। okay, I hope वीडियो चल रहा होगा, yes, so BC √3 and BC √3, CD is 50 equal to BC √3, it means BC will be 50 over √3। तो अगर हम बात करें BC की, तो अब यहां से आपका AB भी निकल जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो AB will be equal to BC over √3, यानी BC की वैल्यू 50 over √3 और इसके नीचे एक और √3 है, यानी कि यहाँ पे इसके ऐसे कर सकते हैं आप, और 50 over √3 into 1/√3, so it will be equal to 50 over 3 and it is equal to 16.67. This is your answer, otherwise you can say it 16/2/3, it is your answer। सो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था वैसे अगर देखा जाए तो, ये क्वेश्चन आते भी हैं बट आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुई होगी समझने में, लेकिन आप इस वीडियो को एक दो बार देखें कि हमने क्या क्या बातें कही हैं। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमने जो डायग्राम भी बनाया है वो बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि CD को जब आप देख रहे हैं तो ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो इट मीन CD की हाइट ज़्यादा होगी। जब आप किसी लोअर पॉइंट को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो कुछ ये बातें हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है, वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।